وادی کشیر مز کیان فلمن ہز شوٹنگ جاری ہدایتکارو تو اداکارو طرف کرنا آمد خوشی ہند اظہار ڈل جیل ست وابستہ شکار والو طرف خاموش احتجاج پارکنگ حوالہ اہم قدم تلنچ شکار والو انتظامیہ منگ تو صاف چنابک غلط استعمال کرنک نس تہ اجازت فیس وقتس پہ ادا نہ کرن والن خلاف یہ سخت کاروائی کرنے ذمہ دار السلام علیکم ناظرین رات سن 9 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل ضلع ترقیاتی کمشنر جوم اخنور حادثس حوالہ کت کران وونمت زِ امہ حوالہ اخ کمیٹی تشکیل دنہ آمژ یُتھ زن واقعس حوالہ مکمل جانچ کرت اصل حقائق برہ کن ین کے لیے انکوائری جو ہے وہ بٹھائی گئی ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سسر گپتا صاحب کی دیکھ ریکھ میں. تو انکوائری رپورٹ جیسے آتی ہے اس کے انوسار کارروائی کی جائے گی. ہاں جتنے بھی ہمارے پاس گھائل تھے اور جو تو ان کا سارا کچھ کوآرڈینیٹ ہو گیا ان کے پریوار والوں کے ساتھ. جو ہمارے مرت لوگ تھے تو ان کا بھی کوآرڈینیٹ ہو گیا ان کے پریوار یا ان کے جو پریواری جن تھے ان کے ساتھ. تو سبھی جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ ہو چکا ہے, کوآرڈینیشن ہو چکا ہے وہاں ہاتھرس اور وادی کشیر مز یہ بیک پھر بالی ووڈ انڈسٹری تو دویمن فلم انڈسٹرین ہزن نظرن مز آئی تو آج کل وادی مز کیان فلمن سیریلن تو ڈاکومنٹرین ہز شوٹنگ کرنے تتہ جنوبی کشیر ہندس اننت ناگس مز یمن فلمن مز کام کرن والو ہدایتکارو اداکارو تو دویمو لوکو طرف خوشی ہند اظہار کران ون آمت زِ وادی قدرتی خوبصورتی ست مالا مال تو عکس بندی کرنس دوران تم سٹھے لطف اندوز سپدن. یہاں اتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے کشمیر میں. پہلے بھی میں کئی بار آیا ہوں لیکن ڈاکومنٹری فلمیں بنائی تھی میں نے, اور پھر میرا دماغ میں یہی آیا کہ میں فیچر فلم شروع کروں. تو فیچر فلم کے لیے ابھی آیا میں, اور ہم یہ فلم شروع کی ہم نے $1 ملین ٹورسٹ, اور فورن کے بھی آرٹسٹ لے لیے ہیں تاکہ کشمیر ایک اچھے وے میں پروموٹ ہو. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کشمیر اب وہ کشمیر نہیں رہا جو کچھ سال پہلے تھا. 370 کے بعد بالکل پیس ہو گیا ہے, یہاں شانتی ہو گئی ہے, ٹورزم اتنا بڑھ گیا ہے, اور بس یہی ہے کہ جتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ باہر سے بھی یہاں ٹورسٹ آئیں, تو جس کی وجہ سے ہم نے ایسا ایک کانسیپٹ چنا جس کا نام رکھا ہم نے $1 ملین ٹورسٹ. آپ کا پہلے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اویسلی, کیونکہ یہ جو فلم ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور کشمیری ایکٹرز مل کے کر رہے ہیں. I'm from London. Okay. I'm from London in England. My name is Carrie Shaw, and I'm mother to Amelia Lawrence, and we're both in this film. Amelia's starring in it, and we're having such a fantastic time. We love being in Kashmir. It's beautiful, it's exciting, and fantastic to work with such a brilliant team around us, led by Jeet Mathuri. Really, you love Kashmir? We do love Kashmir, absolutely. I've never been before. In fact, I've never been to India before, but it's amazing to come here. When we first saw the pictures on Google, because we Googled it as soon What is your reaction? Well, we first saw the pictures and we thought it looked absolutely beautiful, and then when we came, it's just as beautiful in real life. Your message, whole country? My message is come and see it for yourself. It's lovely, and it's not full of tourists at the moment. It's unspoilt, it's beautiful, and you'll have a great time here. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہندوار آز تومینا ملک پور ہندوار دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ محکمہ اریگیشن تو محکمہ دیہی ترقی ہند دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یت تمو نہرِ پٮ۪ٹھ جٲری کامہِ ہُنٛد جٲیزٕ ہیوٚت تتہِ چھُ تمو ووٚنمُت زِ مقٲمی زمیٖندارن رات واتناونس حوالہٕ چھِ کیا قدم تُلنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن نہٕ مقٲمی زمیٖندارن زرعی زٔمیٖنس سگ دِنس منٛز کُنہِ قٕسمٕکۍ مُشکِل ویترٕنۍ پٮ۪ن, ییٚلہِ زن امہِ حوالہٕ محکمہ دیہی ترقی تہٕ محکمہ اریگیشن متحرک تہِ کرنہٕ چھُ آمُت. ہمارا جو ایک فلوم ہے جو ٹوٹ گیا تھا
पिछले दिनों बर्फ़ की वजह से वो कहमिल से निकलता है। आप देखेंगे कि एक्जन साहब वो हमारे जो इरिगेशन के हैं और मैं वहाँ खुद गए। छोटा सा काम है लेकिन बहुत ज़रूरी है। हम पानी को वापस ला रहे हैं, फ्लूम की रिपेयरमेंट हो रही है, उसको हम रेस्टोर कर रहे हैं ताकि जो वो उन इलाकों को जो हज़ारों कनाल की ज़मीन है उसमें पानी आ जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं जो पुल पे थे हम, ये हज़ारों ने लाखों कनाल की ज़मीन है जिससे ये पानी सैराब करता है और हमें उम्मीद रहेगी कि इससे पैदावार बेहतर होगी। नहीं, इसमें रूरल डेवलपमेंट ने एक अच्छा रोल अदा किया है, चूँकि टॉप लेवल पे ये डिसाइड हुआ था कि रूरल डेवलपमेंट की तरफ से डिसल्टेशन होगी कुलों की, वो हो रही हैं और हो भी रही हैं और हुई भी, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, इमीडिएट में फ़र्क पड़ा लोगों को, और पानी की बहुतायत जो है और पानी का जो वॉल्यूम चाहिए था लोगों को वो मिल रहा है। उससे अभी मुझे लग रहा है कि लोगों को ज़्यादा कहीं परेशानी नहीं है आपाशी के हवाले से। हाँ, जो सर हैं हमें रिचार्ज करने पड़ेंगे प्रॉपरली, और जब वक्त ज़रूरत हमें लगे कि पानी चाहिए तो उस वक्त हम इन सरों से जो रिजर्वर हमारे हैं उनसे लोगों को पानी मुहैया। मीनरस मज आज ट्रैफिक पुलिस तरफ ट्रैफिक कानून हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत ये दौरान ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारों तरफ ट्रांसपोर्टरन वन आव तम गन ट्रैफिक कानून पे अमल कर ड्राइविंग करें युत जन सड़क हादसन पे रुट लागनस मज आसानी सपदे। ये मुकामी ट्रांसपोर्टरों तरफ अमि कदम खैर मकदम करना आव तब ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक कानून हज खिलाफ वर्जी करान नजर गन तिमन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से, और ये इन्होंने एक बहुत बड़े अच्छा एक सजेशन दिया है अवेयरनेस ड्राइवरों के लिए कि डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पूरे मतलब जितने भी लवाजमात जो ट्रैफिक के हैं वो पूरे होने चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, मार्केट के अंदर रॉन्ग पार्किंग नहीं होनी चाहिए, ना मार्केट के अंदर से कोई सवारी उठानी है ना सामान उठाना है, जो भी सवारी है तो स्टैंड से उठानी है और स्टैंड पे उतारनी है ताकि सिविलियन लोगों को कोई किसी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना ना उठाना पड़े। पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जो एसओ साहब जो हमारे बीच में आए हैं और इन्होंने अवेयरनेस कैंप लगाया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज पहली बार इन्होंने जो है, आज पहला दिन है इनका, तो हम यही चाहते हैं कि आप जो है अपना काम करें अच्छे तरीके से। और मैं यही अपील करूंगा कि जितनी भी हमारी टैक्सी यूनियन के जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं उनको ऊपर जो है आप नज़र रखें, अगर कोई गलत किस्म का पाया जाता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें। बाकी अदरवाइज़ यहाँ पर जो सिस्टम है हमारे ट्रांसपोर्टरों का बड़ा अच्छा पीसफुल सिस्टम है। आज हमका यहाँ इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही यही मकसद है कि मैंने जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, इसमें मैंने तमाम ड्राइवर हजरात को ये हदायत दी है कि भाई आपने अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखें, जैसे आपका परमिट है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इन अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है भाई वो मुकम्मल रखें। जिस गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होगा, कोई भी कमी होगी, अंडर लॉ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी एक्शन उस गाड़ी पे होगा वो कार्रवाई हम उस पर करेंगे। लिहाजा कोई भी ड्राइवर भाई मेरा कि ये गाड़ियों को विदाउट डॉक्यूमेंट्स ना चलाएं, वो अपनी गाड़ियों को अपने गाड़ी में भाई खड़ी कर दें। इसके अलावा बाकी मार्केट का ध्यान रखें, मार्केट में अपनी गाड़ियां खड़ी ना करें जिससे आम सिविल आदमी को आने जाने में दिक्कत का सामना देखना पड़े। ये भी गुजारिश रहेगी कि अपनी गाड़ियां सवारियां बस स्टैंड से लोड करें और स्टैंड पे ही अनलोड करें, मार्केट से सामान ना उठाएं, मार्केट में जगह जगह पे अपनी गाड़ियां पार्क ना करें। झील डल किस घाट नंबर 18 पे काम करने वाले शिकार वाले तरफ शिकायत बावान वन आमद घाटस नजदीक बजि गाड़ी पार्क करने ट्रैफिक जाम सपदन यम किन तिहुंद रोजगार तठ मुतासर सपोद। शिकार वाले तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिहुंद रोजगार मजीद मुतासर सपदे। मेरा नाम है मोहम्मद शफी, मैं यहाँ पे बचपन से ही शिकारा चला रहा हूँ गेट नंबर 18 पे। कल से ये यहाँ पे इतना मसला बन गया है, जो 13 नंबर जो टंगबाग उसको कहते हैं हम लोग कश्मीर में, वो फेमस है इसी नाम से, लगभग 8 नंबर के 8 पे है वो। इन्होंने क्या किया, वहाँ से मज़दा गाड़ियों को यहाँ ला के खड़ा कर दिया और टेम्पो टावर जो है उनको यहाँ पे पार्किंग में खड़ा कर दिया। चलो हमने उसको बताया अगर 20 गाड़ियाँ आपने यहाँ खड़ा रखी मज़दा जो गाड़ियाँ है और 20 लगभग रखे टेम्पो ट्रावर, उनसे सारी पार्क जो है ना वो बंद हो गई, जो पहले ये मसला नहीं हुआ करता था।
तब से क्या हो गया, हमारा काम ही नहीं, ये देखो सारे शिकारे बैठे हुए हैं। मुश्किलातें आ रही है, जो भी टूरिस्ट आ रहा है ये लोग क्या करते हैं, उनको मंदिर के लिए यहाँ से बिठाते हैं, चलो ठीक है, यहाँ से फिर सीधा उनको वहीं से छोड़ते हैं 13 नंबर। उसमें हमारे अपने गाइड आते हैं, जो हमने 40-50 साल से यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग जो ने जिन्होंने इनको बनाया हुआ है। होटलों से डायरेक्ट आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं हमारे पास बहुत, बंगाल से लोग आते हैं बहुत हमारे। हम चाहते हैं इन लोगों को वापस वहाँ शिफ्ट करें, जो टंगबाग का स्टैंड है वहीं पे शिफ्ट करें। जिसको टूर मंदिर के लिए जाना होगा वो ऑटो में भी जाता था आराम से, वो अपनी गाड़ियाँ जो बाहर से थी वो भी जाते थे। दूसरा मसला हो गया, जो हम कश्मीरी लोग यहाँ पे आते थे घूमने के लिए शिकारों में, यहाँ के लोग भी शौकीन है शिकार में, जब उनको यहाँ पार्किंग नहीं तो वो कहाँ जाएंगे, उससे हम लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई मंदिर के लिए, उससे हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, हमें मंदिर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जो है गाड़ियाँ रखी है, कल उन्होंने बताया 10, आज 20 गाड़ियाँ। हमने ये पार्किंग के लिए बहुत जदोजहद की, तो हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि ये पार्किंग बनाए कि जो हम भी अपना रोज़गारी बनाए। तो जब पार्किंग खड़ी हुई तब तक कोई नहीं आया। अब 10-15 दिन या 2 महीने से ये पार्किंग स्टार्ट हुई, तो एक हफ्ते से इसको मैकडम डाला। मैकडम के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 20 गाड़ियाँ यहाँ रखी। तो उससे क्या होता है, यहाँ एक तो यहाँ का ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम की वजह से जो हमारे पर्सनल कस्टमर होते हैं वो भी नहीं आते। तो क्या होता है कि जो मंदिर में गाड़ी होती है वो ये करते हैं कि ये यहाँ से गाड़ियाँ लेते हैं, हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको मंदिर से फिर उनको नीचे यहाँ नहीं छोड़ते, पता नहीं 13, 14, 12 पे उनको छोड़ते। तो हम जब सवेरे 6 बजे निकलते हैं कस्टमरों को इधर लाने के लिए, जब हमारे कस्टमर यहाँ आते हैं, सवेरे भी 50 का ग्रुप आया था, उन्होंने क्या बताया कि नहीं पहले आप गाड़ी को इधर छोड़ो, उनको बताया कि आप मंदिर चलो, मंदिर के बाद शिकारा। तो हम सवेरे से अभी तक ढूंढ रहे हैं कि हमारे कस्टमर नहीं आए। हम बाद में क्या देखते हैं, जो हमारे कस्टमर है वो शिकारे में घूम रहे हैं, उन्होंने 12-13 नंबर पे उनको छोड़ा। हम चाहते हैं कि जब यहाँ मंदिरों पे बड़े दिन होते हैं, उत्सव होते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, गवर्नमेंट करता है कि उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं ऊपर जाने के लिए। उस टाइम गवर्नमेंट करता है कि अपने सर्विस चालू करते हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा ही करना है, एसएसटी ट्रैफिक को यही करना है, तो ये गाड़ियाँ आप शंकराचार्य रोड पे रखो, जो भी टूरिस्ट आता है, लोकल आता है, वो गाड़ी यहाँ रखे। देखिए बड़ी गाड़ी 4 गाड़ी का जो स्पेस कवर करता है, अगर छोटी गाड़ी हो तो छोटी गाड़ियाँ कितने लगेगी। तो यहाँ से कस्टमर बाई वॉक वहाँ जा सकता है, वहाँ से वो गाड़ी में पिकअप कर सकते हैं, ऊपर से वो वहाँ छोड़ सकते हैं, तो कस्टमर यहाँ आएगा। लेकिन उसके बरक्स क्या करते हैं, यहाँ से उन्होंने अड्डा बनाया, यहाँ पर कस्टमर को डालते हैं, फिर ऊपर लेके ऊपर से फिर दूसरी जगह जाते हैं। ये देखिए हमारे 200-250 जो चूल्हे हैं वो सब खराब हो गए, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये लोग भीख मांगने पे आ गए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से इंसाफ चाहते हैं। श्रीनगर किस छतबल इलाके सहित वबस्त लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद जी यदवे इलाकस मज वीर नावुक अख फुटब्रिज सठई मशहूर तो अकि वक्त यह बॉलीवुड चन नजरन मज ओस, ताहम इंतजामी गैर संजीदगी किन यह खस्तहली हुंद शिकार सपदमुत, यम किन मुकामी लूक मोयूस सपद। मुकामी लूकों तरफ वन आमद जी यदवे क्या वरी ब्रो अमिच मरम्मत करना आई, ताहम नाकस मटीरियल इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत यम किन सह मकसद फोत सपद यम बाबत मरम्मत करना आमज। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अमचे शहर पर हवाले गन कदम तुलने yin युत जन दोबारा यह लुकन हिंजन नजरन मज यह। सबसे पहले आपको और मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीर इसकी एक अलग हिस्ट्री है। यहाँ ये ब्रिटिश हुकूमत से यहाँ जो है वीर जो है मशहूर है। आपको पता ही होगा कि जब तब यहाँ पे फिल्म जो है इंडस्ट्री यहाँ शूटिंग के लिए आती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद यहाँ देखभाल नहीं की, यहाँ की गवर्नमेंट ने रिनोवेट नहीं हुआ। यहाँ कभी भी अगर वाटर फ्लो जो है ऊपर इंक्रीज़ होता है तो लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो इलाका है सफ़ा कदल छताबल, ये आपस में ब्रिज एक है वीर, कश्मीरी में हम इसको वीर शोरा बोलते हैं, वीर शोरा।
ये एक ब्रिज है जो फुट ब्रिज है, ये आपस में दो एरियाज़ को कनेक्ट करता है। मगर जो ही परसों जब गंडबल का वाक़या हुआ, आपको पता ही होगा बारिशों का सीज़न तब भी था, मगर उसके बाद यहाँ वाटर लेवल जब ऊपर थी तो ब्रिज कोलैप्स हुआ। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ की गवर्नमेंट तब से इसको नज़र देने नहीं आई, और जब जब यहाँ वाटर लेवल ऊपर होती है, जो यहाँ के एरियाज़ है पेरिफेरीज में जो एरियाज़ है वो दे लिव इन ए डीप स्लम्बर। वो एक ये आपको पता ही होगा, ये वीर जो है ये एसडीए के अंडर भी आता है, टूरिज्म के अंडर भी आता है, यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है। जी जी जी, ये बात आपकी सही है, इसमें मटेरियल जो है ठीक नहीं लगाया गया था, क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ कश्मीर में जब भी टेंडर्स खुलते हैं, फिर जब किसी को प्रोजेक्ट दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, मगर वो यहाँ पे सही मटेरियल वो अपने घर बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको लोगों की खिदमत करनी है गवर्नमेंट के थ्रू, वो टेंडर्स लेते हैं, मगर अपने घर के लिए वो जो है यहाँ वो पैसा लेते हैं। बस आब आव ये खराबी मज सैलाब गो आब आब नी कदल ये दोन महलन बेचारे और योर पकान करान सोचे तुम शार्टकट गसान यपर हज क्या तन पे गो बे काल प्रोन वीर प्रोन काल वीर कहीं वन कह योर वन कह अगर ये नजर वुचान क्या दलील बे क्या शेरुन गसान आराम इन लकन बेचारे पकनस और योर पकनस गसान बेचारे अजाब ये मेहरबानी। 1930 में ब्रिटिश इंजीनियर्स की तरफ से छतबल इलाके में एक वीर बनाया गया था। इस वीर का मकसद था कि जो मेन सिटी में वाटर फ्लो है उसको रेगुलेट करना, लेकिन सालों की खस्ताहाली के बाद सरकार ने इसको रिनोवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन रिनोवेशन के दौरान सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाने के बाद ये जो वीर की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। हाल ही दिनों में जब बारिशों का सिलसिला था, बारिशें यहाँ पे ज़्यादा हुई थी, थोड़ी बहुत बाढ़ आई थी, लेकिन उस बाढ़ के साथ ही जो आधा वीर है यानी वो आधा जो फुट ब्रिज है ये पूरी तरीके से बह गया, और इस वक्त जो इस ब्रिज की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये वो वीर है, ये वो फुट ब्रिज है जो दो इलाकों यानी छतबल और सफाकदल को आपस में जोड़ता है, और लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। लेकिन पिछले 2 महीने से इसकी हालत जो है खस्ताहाली है। आधा ब्रिज जो है बाढ़ में चला गया है, वो पानी की वजह से वो बह गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद आम लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें हो रही है। और ये जो वीर है ये खाली एक मामूली वीर नहीं है, बल्कि कश्मीर का एक हेरिटेज है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ मैं फैसल याद पेश मजीद खबरन तफसील। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकन मज ये साफ चनाब व्यथ किन आम लूकन मुश्किल बेहतरीन पेवान, तब महकमे PHE चीफ इंजीनियरन अमे हवाले कत करान वोनमुत लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले महकम तरफ सख्त कदम तुलना आमत, ताम जरूरी लूक करन चनाबुक सही इस्तेमाल युत जन प्रेत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस मज आसानी सपदे। यल जन तिमो अत मौके पे सारिफन वोन तिम गसन वक्तस पे फीस ते अदा करन युत जन तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यी। मसला एक बड़ा सिंपल सा मसला है। जिन लोगों के पास इलीगल कनेक्शन है उनको पहले भी हमने टाइम दिया था कि भाई आप इसको रेगुलराइज कीजिए, लीगलाइज कीजिए। इस उनकी वजह से जो है एक तो बहुत मिसयूज़ हो रहा है पानी। आपको पता है ये पीछे जो थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई थी तो उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ी लोगों में, क्योंकि गर्मी से ऑब्वियस है डिमांड बढ़ती है। बट हमने जब हमारे स्टाफ ने जब ग्राउंड पे जाके देखा तो बहुत सारे इलीगल कनेक्शन जो इलीगल हैं उसके बाद भी वो मिसयूज़ करते हैं उसको। कहीं अपने ऑर्चर्ड्स में लगाते हैं, कहीं अपने बागात में लगाते हैं और गाड़ियाँ धो रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम डिपार्टमेंट हर तरह से हर एक आदमी को, हर एक हाउस होल्ड को पानी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने हर एक को देना, बट पब्लिक का भी तो कुछ बनता है ना। पब्लिक को भी तो इसमें वो करना चाहिए कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे शन नहीं करना चाहिए। अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, और अगर इलीगल है तो उसको लीगलाइज कीजिए। हमने उनको काफ़ी टाइम दिया, हमने फिर भी अभी भी उनको टाइम दिया कि आप हफ्ते 10 दिन और दिए हैं कि आप लोग करवाइए, अपने कनेक्शन लीगलाइज कराइए, आपको पानी मिल रहा है और पानी को वेस्ट नहीं कीजिए।
क्योंकि ये पानी जो है ये पानी पीने के लिए, इसके हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है, इसको हमें पानी को पहले ट्रीट करना पड़ता है, इसके लिए हमारा उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और उसके बाद हम वो पानी देते हैं। तो वो पानी पीने के लिए है, घर के कामों के लिए है, पर ये पानी एग्रीकल्चर यूज़ के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से हमारा सिस्टम है, कनाल का सिस्टम है, वहाँ से लीजिए आप एग्रीकल्चर का पानी। अगर आपने अपने ऑर्चर्ड्स में पानी देना है, अगर आपने, और लोग ये अब जैसे कुछ अपने घरों में भी कुछ थोड़ा सा वो चेंजेस करें, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए, उसको यूज़ करें, उसको अपने बाग के लिए यूज़ करें, उससे आप अपने गाड़ियाँ धोएं। हमारा स्टाफ उसमें भी कार्रवाई कर रहा है। हम उनको कह रहे हैं कि भाई आपके जो पुराने जितने भी पुराना जो ड्यूज़ था तो उसको आप पे कीजिए, ड्यूज़ को पे कीजिए। हम उनके लिए, उसके लिए भी उनके ऊपर हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई आप पुराने ड्यूज़ पे कीजिए। और क्योंकि पहले तो सिस्टम हम ये ड्राइव पूरा साल चलेगी, अब ये नहीं है कि हम मतलब यहाँ पे अभी चला रहे हैं, ये ड्राइव हमारी साल चलेगी, सारा साल चलेगी। लोगों को हम फैसिलिटेट करेंगे, लोगों को पानी देंगे, बट लोग भी ये चीज़ समझे कि इलीगल पावर कनेक्शन तो नहीं चल रहा, तो फिर पानी का क्यों चलेगा। वेबसाइट का कुछ थोड़ा सा था, बट वो अब हाँ, क्योंकि उसको पहले अब हमारे जकायजा के थ्रू चलेगी, जो हमारे अपने गवर्नमेंट एजेंसी, उसके थ्रू हमने वो वेबसाइट को वो कर रहे हैं। तो उसमें जो थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज़ है, उस वजह से साइट ओपन हुई है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट इट विल बी ओके। ये तो डिवीज़न में ही होगी, तो वो तो जो डिवीजन से एसएमसी को ट्रांसफ़र हो गए तो उनके पास ही जाएगी वो रजिस्टर। पर उनके जो अभी टैरिफ हम ही ले रहे हैं, टैरिफ अभी, क्योंकि अभी कंप्लीट वो 74th अमेंडमेंट का पूरा जो था वो पूरा हैंडिंग ओवर टेकन ओवर नहीं हुआ है, बट टैरिफ जो है अभी पीएचई डिपार्टमेंट के पास। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशान इंद्राबी गुलिस्तान न्यूज़ सहित कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ वरी 2019 में जम्मू कश्मीर हवाला अख तारीखी फैसला निन आमुत यम किन जम्मू कश्मीर मज अमन अमान तो तमीर तरक्की हुंद अख नो दौर शुरू सपुद। इन कथन हज बावत आज तमो श्रीनगरस मज अकिस सैलूनस इफ्तिताह करने पत कर्मज। वादी कश्मीर में आए रोज़ अगर देखा जाए तो नौजवानों के खास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट्स को लेकर, स्किलफुल डेवलपमेंट्स को लेकर बढ़ते इकदाम दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच अगर देखा जाए तो सरकार भी उन्हें हौसला अफजाई के लिए जी हाँ हमेशा तैयार रहती है, आगे बढ़ती है। इस बीच अगर बात करें तो शहरी श्रीनगर के सराय बला इलाके में आज एक सैलून की ओपनिंग हुई है, इनॉग्रेशन हुई है। मगर खुशी की बात यह है कि हमारे बीच इस वक्त दरख्शान इंद्राबी जी हैं जो इस मौके पर यहाँ पर मौजूद है। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैम, जानना चाहूँगा कि बदलता हुआ जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए डिफरेंस एक आई विजन आजकल के यूथ में देखने को मिल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अब वो ज़माना है जब ज़िंदगी के साथ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बदलता है कोई भी निज़ाम और जब उसमें खुशहाली हो, अमन हो, तो लोगों का जो विज़न है वो बहुत बड़ा हो जाता है। उस हॉरिज़न पे आप दूर छलांग मारते हैं और दूर दृष्टि में देखते हैं। वही चीज़ है जब से यहाँ पे अमन और तरक्की का वो दौर शुरू फिर से हो गया 5 अगस्त 19 के बाद। अब यहाँ पे हर कोने में, और हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं जो चाहते हैं कि अपने पाँवों पे खड़े हो जाएं, सरकार ने भी उनके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, लोन दिए हुए हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं और अपने बिजनेस यूनिट्स खोल सकते हैं। उसी सिलसिले में आज जो आपने पहले ही बताया, यहाँ सैलून ये इवोग से नाम से ये शुरू हुआ है। हम इन नौजवान तो नाजरीन, इस खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।